stress in beam and shear stress in beam. तो आपको करना क्या है, you have to find out bending stress and you have to find out shear stress in beam, right? Now when you talk about a bending stress, right, if you talk about a bending stress, you have a few of the option that સર બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ તો આવી રીતે ન હોય. આપણે આગળ ભણ્યું હતું એમાં તો બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ M/Z હતું. તો આ જે છે એ બીમનું બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ અને ઓલું જે હતું એ કોલમનું બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ હતું. બરાબર છે? સો બોથ ધ थिंग्स वर डिफरेंट. અત્યારે જે વાત હાલે છે એ આખી બીમની છે. अभी जो हम कर रहे हैं वो बीम का है पूरा. तो both of the things are quite different from each other, right? तो ये जो है ना एक कि भाई सर पिछली बार हमने जो पढ़ा था वो अलग है, ये बार पढ़ा था वो अलग है, लेकिन आपने कंबाइंड स्ट्रेसेस जब पढ़ा था तो वो क्या था? इट वाज अबाउट अ कॉलम. उसमें आप कहीं पर भी बीम पढ़े? आपने बीम का कुछ भी पढ़ा उसके अंदर? कंटिन्यूअसली नहीं. हाँ ना सर. हाँ, वो चैप्टर के अंदर, हाँ वो चैप्टर के अंदर हमने बीम का कुछ भी नहीं पढ़ा था. हमने जो भी पढ़ा वो कॉलम का था. तो ये अभी जो हम चैप्टर कर रहे हैं इट इज रिलेटेड टू बीम. तो इसके अंदर हम जो पढ़ रहे हैं वो बीम के रिलेटेड पढ़ रहे हैं. दैट मीन्स अ डिफरेंस, राइट? तो वही डिफरेंस है कि ये क्या है. इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पढ़ा था वो प्योर बेंडिंग थियरी है, राइट? And now can anyone tell me what do you understand by bending theory? प्योर बेंडिंग थियरी के अंदर बेंडिंग थियरी मतलब क्या है? What do you understand by bending theory? No one? बेंडिंग से हमसे बेंडिंग मोमेंट बीम पे कितना हो रहा है वो हम फाइंड कर सकते हैं बेंडिंग थ्योरी के अनुसार. अब वो तो सही है. बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम जब हम बात कर रहे हैं तो वी कैन से दैट हाँ बेंडिंग स्ट्रेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं उस थियरी के साथ. लेकिन बेंडिंग थियरी है क्या एक्चुअली? बेंडिंग थियरी एक्चुअली, Manan, what do you understand by bending theory, man? Manan, am I audible to you? Yes. Can you just answer? Don't worry, it could be a haphazard answer, whatever you are thinking in your mind. You can give me that answer. I don't need a precise answer, but I want to know that what's going on your mind when it comes to a pure bending theory. Manan? સર બેન્ડિંગ મોમેન્ટ આવતું હોય ઈ લોડ આવતો હોય બેન્ડ જે આપણે જે કોઈ બી કહેવાય ને આપણી પાસે જે ઓલા સ્ટ્રક્ચર નું જે કઈ છે કે બીમ કે કોલમ કે એના ઉપર જે બેન્ડ થતું હોય એમાં ઈ બેન્ડિંગ. Anand, can you comment on this? Can you elaborate this? Can you elaborate bending stress in beam? Anand? Yes, sir. Anand, can you do this? Can you elaborate bending stress in beam? Or can you tell me what is pure bending theory? અડધી તો અડધી હું એ જ કહું છું કે તમને શું ખબર છે એ જાણવું જ તો હું તમને એ રીતે ભણાવી શકીશ ને. આનંદ કેવો શું છે? સર આમાં આપણે ટોટલ બીમાં જેટલા સ્ટ્રેસ અને ક્યાં ક્યાં સ્ટ્રેસ એમાં જે આપણે પેલા ભણ્યા હતા કે કઈ રીતના મીન્સ કે કેવો બીમ છે રેડી એના ઉપર કઈ પ્રમાણે એના સ્ટ્રેસ લાગે છે અને એ બધું ફાઇન્ડ કરો ને એના ઉપરથી જે પછી આગળ મળે ને એવું એવું નથી. પ્યોર બેન્ડિંગ થિયરી કંઈક અલગ જ છે. જો કે આપણે ઘણી બધી વાર એને સમજી પણ વાંધો નહીં, ધેટ્સ ઓકે.
એમાં આપણે ન સમજ્યા હોય તો કઈ વાંધો નથી. ખુશી, can you tell me what is pure bending theory? સર એટલે એમ કહી શકાય કે એવા ફોર્સ બીમ ઉપર લાગતા હોય કે જેના લીધે એની ઉપર બેન્ડ થવાના ચાન્સીસ છે. ઓકે, બેન્ડિંગ થઈ ગયું, બરાબર છે. તો એને ધીસ ઇઝ અ થિયરી, રાઈટ? તો એ બેન્ડિંગ થયા પછીની થિયરી પૂછે છે. તો વોટ આફ્ટર બેન્ડિંગ? Pure bending theory is theory which conclude after the bending. So what after bending? બેન્ડિંગ પછી કેટલું ડિફ્લેક્શન આવે છે? Okay. So we have studied that in slope and deflection. Ritesh, Ritesh Kumar. अगर कोई मुझे आंसर नहीं देगा तो मैं लीव करा दूंगा उसको. सही है. उमेश, उमेश कुमार, किधर है उमेश? अपना आप लेफ्ट कर दिए. करण कुमार, ये सर बताइए, आप कुछ बता सकते हैं प्योर बेंडिंग थियरी क्या है? सर मोमेंट मोमेंट नो सर. आपको नहीं, किसी को नहीं पता, दैट्स ओके. बट आज जब मैं करवा रहा हूँ ना, तब उसको हमेशा के लिए याद रखना, क्योंकि ये थियरी जो है ना वो हमेशा के लिए काम आएगी. आई टोल्ड यू दिस इज अ फादर, दिस फॉर्मूला इज अ फादर ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस. मैंने आपको तभी भी बोला था कि अगर आपको कभी भी कोई बीम एनालिसिस करना है तो दिस फॉर्मूला इज द फादर ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस. Zainab, can you tell me something about this? Zainab, can you hear me? Zainab? Sir, I cannot hear you properly. Can you elaborate pure bending theory? Sorry, sir. Pure bending theory. Sir, તમારો અવાજ જ બહુ જ કપાય છે. You can read this. Yes, sir. Sir, પ્યોર બેન્ડિંગ થિયરી ઉપરથી આપણે ઈ ખબર પડી શકે કે જે આપણે ડિફ્લેક્શન મળ્યું એનો જે પ્રોપર પોઈન્ટ કયો હોઈ શકે છે કે જે ક્યાંથી ડિફ્લેક્શન થયું છે અને એવી રીતનું. Okay. Yes, Anand, you just raised your hand. ना सर, मिस्टेक ही थी गया. ओके. तो जब हम प्योर बेंडिंग थियरी की बात कर रहे हैं तो प्योर बेंडिंग थियरी में पहली चीज ये है कि आपका कोई भी बीम है, दिस इज योर बीम, राइट? इस बीम के ऊपर आप कभी भी लोड दोगे तो बीम कैसे डिफ्लेक्ट होगा? इन कर्वेचर फॉर्म, राइट? ये कर्वेचर बनेगा. तो इस कर्वेचर के अंदर ऊपर का जो फॉर्मुलेशन है वो कौन सा होगा? कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा? તમે કોઈ પણ બીમ ઉપર લોડ દો ત્યારે એ શું બને? એ વળી જાય, બરાબર છે? વળી જાય તો આ ઉપરના ભાગમાં શું થાય? કમ્પ્રેશન થશે, ટેન્શન થશે? ऊपर કમ્પ્રેશન
ઉપરમાં કમ્પ્રેશન થશે અને અહીંયાથી આ બે બાજુ ખેંચાણ છે ટેન્શન. એટલે આ ટેન્શન થશે. So this is what you tell a pure bending theory. This is what it is known as a pure bending theory. આ pure bending theory કેવા માંગે છે આટલી જ વસ્તુ. પણ આ પોસિબલ ક્યારે છે? When pure bending theory is possible, it has some assumption. તમારે એમાં કઈક assumption આવશે, બરાબર? એ assumption શું છે? एग्जाम्पल ये है कि द बीम का जो है इलास्टिसिटी है वो तब तक वैलिड है जब हुक्स लॉ इसमें से अप्लाई होगा तब. ओके, तो उसका 2-3 assumption है, एक्चुअली 4 से 5 assumption है. फर्स्ट assumption, हाँ, फर्स्ट assumption उसका ये है कि वो जो बीम है, राइट, वो बीम हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल sorry, first of all it should be homogeneous. Can anybody tell me what do you understand by homogeneous and isotropic? કોઈ કહી શકશે homogeneous and isotropic શું છે? સર હોમોજીનિયસ એટલે એક જ સાઇઝ નો થ્રુ આઉટ, એમ સેમ કાઇન્ડ ઓફ થ્રુ આઉટ. હોમોજીનિયસ એટલે મટીરિયલિસ્ટિક થ્રુ આઉટ એક સરખો, અને આઇસોટ્રોપી એટલે સાઇઝ વાઇઝ ઇક્વિલિબ્રિયમ પ્રોપર્ટી બધી બાજુથી. આ પણ તે જે કીધું એ આઇસોટ્રોપી થાય, બરાબર? હોમોજીનિયસ એટલે મટીરિયલ જે છે ઈ સિમિલર હોય. बराबर है? बधाने क्लियर है? सभी को ये क्लियर होना चाहिए. जहां पर भी नहीं पता है स्टॉप करवा दो, ये सेकंड टाइम में रिवाइज कर रहा हूं इसको इसीलिए. Okay, now second thing, the beam is stressed within the elastic limit. Then Hooke's law should be followed. So this is the second point, that Hooke's law is valid. Right. What is the Hooke's law? Hooke's law is A stress proportional to the strain. Within the elastic limit. Yes. Stress is directly proportional to strain within the elastic limit. तो ये सही है. तो ये जो बीम है आपका वो इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए. जो लोडिंग कंडीशन है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होनी चाहिए. तो ये सेकंड पॉइंट हो गया. अभी इसका थर्ड पॉइंट मैं बोलता हूँ. तो क्या है, तो जो एक सेक्शन है, मतलब एक सेक्शन है जो प्लेन था, ये बीम के अंदर एक प्लेन है जो पहले से भी प्लेन था और लोड देने के बाद वो प्लेन ही रहा. दिस अपीयर्स इन अ न्यूट्रल एक्सिस. तो ये जो है ना, ये प्लेन वो बेंडिंग के बाद भी वही रहता है, प्लेन ही रहता है, उसमें कुछ बेंडिंग होता नहीं है. दिस इज एन assumption. આ શું છે કે બીમ ની અંદર જે ન્યુટ્રલ એક્સિસ નો પ્લેન છે, એ પ્લેન શું થાય, ટ્રાન્સવર્સ પ્લેન, કે બેન્ડિંગ પહેલા જેવો હતો એવો જ બેન્ડિંગ પછી છે, એવું એક એઝમ્પશન છે. એવું એકચ્યુઅલી થતું હોતું નથી, પણ એનું બેન્ડિંગ એટલું ઓછું હોય છે કે આપણે એને નિગ્લેક્ટ કરી શકતા હોઈએ છીએ, એટલે આપણે કરીએ છીએ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ થર્ડ થિંગ. Now fourth thing, हर एक जो लेयर है ना बीम का, बीम के अंदर हर एक जो लेयर है, each layer in beam is independent from the layer. ये लेयर जो है बीम का, वो दूसरा लेयर जो है उससे इंडिपेंडेंट है, दूसरा लेयर जो है थर्ड से इंडिपेंडेंट है, फोर्थ लेयर जो है वो फिफ्थ से इंडिपेंडेंट है और थर्ड से भी इंडिपेंडेंट है. तो इसका मतलब ये है कि हर एक लेयर जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अलाउड है.
वो एक या दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये होमोजीनियस तभी बनेगा जब ये सिचुएशन नहीं क्रिएट होगा। लेकिन फॉर एनालिसिस पर्पस वी आर अज्यूमिंग दैट, मैं यही बोल रहा हूँ कि ये ऑल द थिंग्स आर assumption, ये जो भी हम बढ़ा रहे हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो assumption है, it's not a reality, right? And last, fifth one, the value of Young's modulus is same in compression and tension. So Young's modulus Y is equal to 1 for compression or 1 for tension. So Y जो है या Young's modulus is equal to E. तो ये जो है ना वो हमेशा हम क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि नीचे और ऊपर जो यंग मॉड्यूलस का वैल्यू है वो सेम है, कंप्रेशन और टेंशन में वो सेम है, और उसको सेम आइडेंटिफाई करके ही हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहां तक का पता चल गया सभी को? હવે તો હા કે ના બોલો। यस सर। Yes, sir. यस सर। सर आप मतलब हाँ के ना भी नहीं बोल सकते? पूरा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, एटलीस्ट आप बोलिए तो सही कि नहीं नहीं पता चला तो ना बोलिए, पता चल गया तो हाँ बोलिए। दिस इज नॉट अ गुड मैनर्स। ओके, उसके बाद जो है वो प्योर बेंडिंग थियरी का फॉर्मुलेशन है। फॉर्मुलेशन की पहले बिफोर फॉर्मुलेशन हमें ये पढ़ना है कि व्हाट इज न्यूट्रल लेयर एंड न्यूट्रल एक्सिस। तो फॉर एग्जांपल ये एक बीम है, राइट, और ये उसका हम स्ट्रेस डायग्राम फॉर एग्जांपल ड्रॉ किए। ये इसका स्ट्रेस डायग्राम हम ड्रॉ किए। तो इसके अंदर ये जो एक्सिस है जो मिडल और जीरो से निकलता है, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस, सही है। और जो प्लेन है, ये जो प्लेन है पूरा, क्योंकि बीम का तो सब दो दो रहेगा डायमेंशन, लेंथ और विड्थ रहेगा, तो ये जो प्लेन है ना उसको हम न्यूट्रल लेयर कहते हैं। तो न्यूट्रल लेयर क्या है और न्यूट्रल प्लेन क्या है और न्यूट्रल एक्सिस क्या है? ये न्यूट्रल लेयर या न्यूट्रल प्लेन बोथ कह सकते हैं हम, उसको दोनों कह सकते हैं। So we can tell about both the things. Okay. સર એ એક્સિસ નો થાય વચ્ચે વાળી? અરે એક્સિસ જ છે, પણ ઈ એક્સિસ જે છે એમાં લેન્થ વિથ ડાયમેન્શન કાઈ ન હોય, ઇમેજિનરી લાઈન છે। હા ના? ના સર। કાઈ એક્સિસ ઇમેજિનરી લાઈન નથી। ઓકે હા એમ એક્સિસ, હા બરોબર। ઈ એક્સિસ જે છે ઈ તો ઇમેજિનરી લાઈન છે। આ પ્લેન જે છે એ તો બીમ ની અંદરનું વચ્ચેનું ન્યુટ્રલ પ્લેન છે કે જ્યાં બીમ આખો છે। એનો મતલબ કે ઉપરથી બીમ ને જો તો આ એની પટ્ટી જે છે એ પટ્ટીની વાત છે, અને સાઈડમાંથી જો તો એક આખું લેયર છે જે મિડલમાં છે, એકદમ મિડલમાં સાઈડનું જે લેયર છે એ આખું પ્લેન જે છે એ આખા પ્લેનની વાત કરીએ છીએ, એટલે એ ન્યુટ્રલ લેયર થયું આખું। સમજાઈ ગયું સર। એટલે આ ઉપરનો ટોપ કર્યું ને તમે અને આ સાઈડમાં કર્યું। ન્યુટ્રલ લેયરની વાત એટલે કરી કારણ કે એક એણે કીધું ને કે ટ્રાન્સવર્સ લેયર રિમેન્સ સેમ બિફોર બેન્ડિંગ એન્ડ આફ્ટર બેન્ડિંગ, તો ઈ આ ન્યુટ્રલ લેયરની વાત આલે છે। હવે મોમેન્ટ ઓફ રેઝિસ્ટન્સ,
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस શું છે? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है कि जो भी बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है बीम के ऊपर, जो क्रिएट हो रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा जो फोर्स है, रेजिस्टेंस के लिए जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, वो बेंडिंग रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलेंगे हम उसको। इसका मतलब कि कहीं पर आप स्ट्रेस बेंडिंग हो रहा है, बीम का बेंडिंग मोमेंट ये क्रिएट हुआ, तो इसको जो रेजिस्ट कर रहा फोर्स है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। और ये जो फोर्स है इसको हम कपल बोल सकते हैं, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स। ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, तो ये सिस्टम जो क्रिएट होगा तो वो कपल होगा। यस सर। तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। अभी क्या है, ये प्योर बेंडिंग। यस, न्यूट्रल लेयर को एक बार जनरल लैंग्वेज में समझाते हैं। जनरल लैंग्वेज में बोला ना, न्यूट्रल लेयर मतलब क्या है कि ये बीम जो है आपका, सही है, अगर बीम को ऊपर से देखेंगे तो बीम के बीच में एक लेयर आएगा जहां से न्यूट्रल एक्सिस पास हो रही है। तो ये पूरा जो लेयर है ना, वो जो है ये पूरा शेडेड लेयर, इसको हम न्यूट्रल लेयर बोलेंगे। ये पूरा प्लेन है, न्यूट्रल लेयर का प्लेन है पूरा। और यहाँ पर जब डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ किया, तो उसका तो साइज तो रहेगा नहीं, इसका कुछ साइज तो नहीं रहता ना, बीम का साइज होता है, इसका तो नहीं होता। तो बीम के अंदर जो है वो न्यूट्रल लेयर और स्ट्रेस के अंदर, ये डायग्राम के अंदर है वो न्यूट्रल एक्सिस रहेगा। इज इट ओके? ओके सर। अभी है इक्वेशन फॉर बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस का जो इक्वेशन है वो कैसे क्रिएट होता है, वो प्रूफ एक बार हमने पढ़ा था, सही है। मैं अभी आपको पूरा प्रूफ नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इक्वेशन बता रहा हूँ। इक्वेशन क्या है? सो प्योर बेंडिंग थियरी का इक्वेशन क्या है? m अपॉन i इज इक्वल टू f अपॉन y इज इक्वल टू e अपॉन r। ऐसा कुछ आया था न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तब? આપણે કઈ સોલ્વ કરતા હતા ત્યારે આવું કઈ વચ્ચે આવ્યું હતું? यस सर, अर्निंग फाइंड करने के लिए सर ऐसा इक्वेशन हम लोग यूज किए थे न्यूमेरिकल फाइंड करने के लिए सर। Now what does this shows? This shows that a is equal to b is equal to c। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको कपल में निकालना है, मतलब दो दो का जोड़ा बनाना है, सही है, मारे भाई आमा बे बे वस्तु खाली काढवी છે, તો હું શું કરી શકીશ? તો કે a is equal to b લખી શકું, b is equal to c પણ લખી શકું, a is equal to c પણ લખી શકું, બરાબર? a is equal to c પણ લખી શકું। तो a is equal to b થઈ ગયું, a is equal to c થઈ ગયું, b is equal to c થઈ ગયું, તો b is equal to a પણ અહીંયા આવી ગયું। तो હું આ બધી વસ્તુ કરી શકું આમાં કે ના કરી શકું? यस सर, कर सकते इज दिस पॉसिबल? हाँ। तो इसके लिए अगर मुझे सॉल्व करना है, सही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये m मतलब क्या है? व्हाट इज m? मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। Moment of inertia. नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो I होता है, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ऑफ रेजिस्टेंस। I मतलब क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। F मतलब क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। ना, ओके, F इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस, राइट। अभी Y इज इक्वल टू क्या है?
center of the vertical axis. सेंटर ऑफ वर्टिकल एक्सिस y इज इक्वल टू, और भी कुछ बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको y को, कोई बताएगा? डिस्टेंस और सेंटर से डिस्टेंस अपर पार्ट साइड y डिस्टेंस होगा ना इज सर? इक्वल, हाँ डिस्टेंस है वो तो सही है, लेकिन y को कुछ नाम देते हैं, तो y को हम नाम देते हैं सेक्शन मॉड्यूलस, सॉरी व्हाट तो z है, y को जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ पर है, ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी के लिए जो डिस्टेंस है वो बोलेंगे। इसके अंदर ई क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई? Eccentricity. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एसेंट्रिसिटी कॉलम में खत्म हो गया, ये कॉलम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, आप दो चैप्टर को एक साथ मिक्स मत कीजिए। और वो जो ई था वो छोटा वाला ई था, Yes, sir. राइट? हाँ, और आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी ये फॉर्मूला को आपको यूज कितना करना है, अगर आपको बोले कि बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, क्या करना है, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम फाइंड आउट करना है, आपको मोमेंट आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है और वाई दिया है, तो आपको यूज इतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको फाइंड आउट करना है। તમને એમ કીધું હોય કે બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ ફાઇન્ડ આઉટ કરો, તો તમને m આપી દીધો છે, તમને i આપી દીધો, તમને f આપી દીધો, તમને y આપી દીધો છે, સોરી f નથી આપ્યો, y આપી દીધો છે, તો તમારે આ વસ્તુ નડવાની જરૂર નથી, તમારે ખાલી આ જ બેને ઇક્વેટ કરો એટલે તમને આન્સર મળી જાય। એની જગ્યાએ તમને e r અને y આપ્યો હોત તો ખાલી આટલી જ વસ્તુને તમે ઇક્વેટ કરો, આખું ઇક્વેટ કરવાની જરૂર ન હોય લગભગ એકય સમમાં। ક્લિયર? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये जो खत्म हुआ वो बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम था, क्या था? बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, इसका ये कंप्लीट हो गया। इसका एक ही फॉर्मूला है वो जो न्यूमेरिकल के लिए काम रहेगा, m अपॉन i इज इक्वल टू f अपॉन y इज इक्वल टू e अपॉन r। इसको याद कर लिया तो पूरा खत्म हो गया, पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन का आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस खत्म हो गया पूरा। सर पूरा नहीं दिखाई दे रहा। इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. Visible. अच्छा, ये इक्वेशन को सर हम लोगों ने प्रूव किया था। क्या बता रहे हो, पता नहीं चला। सर ये इक्वेशन को हम लोगों ने प्रूव किया था कि ये कैसे आया है सर। वो तो किया था, लेकिन जो आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि कल एसेंट्रिसिटी, आप ई को एसेंट्रिसिटी बता रहे हो अभी, तो वो चैप्टर मिक्सअप हाँ, मत कीजिए। पहले तो वो एसेंट्रिसिटी कंप्लीट हो गया, वो कंबाइन स्ट्रेस का था, वो चैप्टर ही खत्म हो गया, वो कॉलम के अंदर है। यस सर। अभी ये जो पढ़ रहे हैं वो बीम है, अभी इसके अंदर मैंने एसेंट्रिसिटी को ऐड किया ही नहीं है, तो आप क्यों एसेंट्रिसिटी को ला रहे हो इसके अंदर बीच में? यस सर, वो मिस है। नहीं, वो याद, सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। अभी दूसरा जो है वो शियर स्ट्रेस है। व्हाट इज शियर फोर्स? मनन, व्हाट इज शियर फोर्स? Manan, what is shear force? मनन छो के लीव कर दो? छू सर। हाँ तो बोल मोढ़ामांथी, what is shear stress?
શિયર ફોર્સ એટલે શું છે ઈ કયો. See, all of you need to work out with your fundamentals. Huh? I cannot teach you what you have learned in previous semester. I can teach you what is going on in this semester. Right? The shear force is a part of previous semester where you were designing a shear force and bending moment diagram. You use this shear force over there. Kushi, can you tell me what is shear force? perpendicular force, sir, perpendicular force, axis થી perpendicular force. Kushi, can you tell me what is shear force? Sir, force acting perpendicular to longitudinal axis. Okay, that's what you have found out right now. I'm not asking about that. I'm asking about your understanding about shear force. Right? Sir, force upon area. It is a stress. That is a force upon area. That is only stress. I'm talking about shear force, not yet about shear stress. सर जब भी कोई बेंडिंग पे शियर फोर्स, जब भी कोई सर बीम पे हम शियर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें सर कॉम्पेंसेटिव जो होता है वो क्रिएट नहीं होता, ओनली टेंशन क्रिएट होता है सर. Shear force ને પેલા તો આપણે ચિરાણ બળ કહીએ છીએ. Shear force मतलब वो फोर्स जो आपके प्लेन को टेयर कर देगा. This is known as shear force. एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, इसकी वजह से आपका जो पेज है ना, right, this is a shear force. In short, this is a shear force. What it was, the same force in opposite direction which can tear your place. This is known as the shear force. In your beam, at which place you find the shear force is maximum? Beam ની અંદર shear force maximum ક્યાં હોય? તમે ભણ્યા છો shear force અને bending moment. હે? ક્યાં આગળ? At center. Probably you are right, but this is not an exact answer that you should give. Not that, that's not at a center, I can say. Shear force is maximum where bending moment is zero. Where bending moment is zero, shear force is always maximum. And where bending moment is maximum, shear force is always zero. This is a thing that you should remember for all the time. Right? And that is the place where you find out your point of contact. Now अभी shear force की बात की, तो shear stress किसको बोलेंगे? Stress किसको बोलेंगे? Force upon area. This is the resistance of force per unit area. That means the amount of force that has been resisted to the applied force, that is your stress. Right? Stress is always a resistance per unit cross section area. Right? Then what do you understand by shear stress? So if your shear force F, shear force upon shear area, that will be your, obviously that will be your shear stress. ભાઈ આ સમજાણું પેલા shear stress ક્યાંથી આવે છે? Yes sir. અભય, અભય,
अब भाई नहीं समझा तू, कोई बात नहीं। तो जो स्ट्रेस है वो फोर्स अपॉन एरिया है, तो शियर स्ट्रेस क्या रहेगा, शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया। दिस इज शियर स्ट्रेस एवरेज, ये एवरेज शियर स्ट्रेस है। अगर आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो अलग जगह पर फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर किसी डिस्टेंस के साथ फाइंड आउट करना है तो अलग जगह पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज अ सीक्वेंस ऑफ फॉर्मूला फॉर दैट, राइट। तो हमने वो रेक्टेंगल के लिए एक क्रिएट किया था कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला। लेकिन कहीं पर भी आपको न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर अगर फॉर्मुलेट करना है इसको शियर स्ट्रेस को, तो उसका फॉर्मूला पहले तो क्या रहेगा, शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस क्या रहेगा, उसके अंदर आप वैल्यू पुट ऑन कर दीजिए। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल कर दीजिए, आई है तो आई सेक्शन के लिए कर दीजिए, वाई है तो वाई सेक्शन के लिए कर दीजिए, जेड है तो जेड सेक्शन के लिए कर दीजिए, कोई भी सेक्शन है आपके पास आप कर सकते हो। तो दैट इज स्ट्रेस tau is equal to f upon a into y bar, f into a upon y bar into y bar upon I into b. This is a shear stress at neutral axis, where it might be maximum in majority of cases. It might be maximum shear in majority of cases. Is it okay up till this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Zainab, it is okay up till this? Yes, sir. I think things are not mixing up right now, right? Now you are clear with what we are studying right now. Everyone, I hope we are clear what we are studying right now. Now this stress distribution diagram for every shape is different. Stress distribution diagram for every shape is different. But for circle, triangle and rectangle, it is always a parabola, where the maximum force, in this case, if it is in rectangle, then maximum occurs at tau max, right? This is at tau neutral axis. सेम विद द सर्कल आल्सो, सर्कल के अंदर भी मैक्सिमम जो है वो न्यूट्रल एक्सिस के बाजू में ही होगा, टाउ मैक्स। बट जब ट्राइंगल है आपके पास तो उसका न्यूट्रल एक्सिस बीच में से नहीं जाता है, वो नीचे से जाएगा, राइट? लेकिन इसका मैक्सिमम किधर क्रिएट होता है, तो मैक्सिमम क्रिएट यहाँ पर होता है। तो ये टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस इज नॉट मैक्सिमम ओवर हियर, सो आई टोल्ड यू इट इज इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, राइट? ये जो है वो 4/3 टाउ एवरेज होगा। इसको प्रूव नहीं करना है हमें, वो कैसे होगा वो हमें याद रखना है कि ये ऐसे ही इतना ही होगा। प्रूव सिर्फ इसके लिए करेंगे हम, और प्रूफ सिर्फ इसके लिए करेंगे। ये दो चीजें हैं जिसके लिए हम प्रूव करेंगे 4/3 टाउ एवरेज, और ये जो है उसका 1.5 ये हमने प्रूव किया है, टाउ AVG। ओके, क्लियर फॉर एवरी? Yes, sir. Yes, sir. अभी जो सेक्शन चेंज होता है, राइट, अभी इसके अंदर जो सेक्शन चेंज होता है, ये तीनों सेक्शन की जगह कुछ और आया। फॉर एग्जांपल दिस इज अ टी सेक्शन। तो टी सेक्शन के लिए आपको करना क्या है,
आपका जो शेप है ना वो चेंज हो रहा है और वो शेप के अंदर मैक्सिमम इधर क्रिएट होगा। सो दिस इज योर टाउ मैक्स और वो आपको यहाँ से y को लेकर बनाना पड़ेगा। અહીંયા તમારે y ને લઈ અને આની ફોર્મ્યુલેશન કરવી પડશે। ઈ જ્યારે ન્યુમેરિકલ કરીએ ત્યારે આપણે કરશું, બરાબર છે? ઈ કઈ રીતે કરવાનું થાય તો સ્ટ્રેસ તમારે અહીંયા ટાઉ b પણ ફાઇન્ડ કરવો પડશે, અહીંયા ટાઉ c પણ ફાઇન્ડ કરવો પડશે, બરાબર છે? અહીંયા તો 0 જ છે, ઓબ્વિયસ છે 0 है, यहाँ पर भी वो टाउ 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 चीजें को फाइंड आउट करना पड़ता है क्योंकि इसका न्यूट्रल एक्सिस जहां पर जा रहा है वहीं से इसका होगा मैक्सिमम, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस जो है वो टी सेक्शन के लिए बीच में से तो नहीं जाएगा, इट विल नॉट गो फ्रॉम द सेंटर। अगर ये आई सेक्शन है, आई सेक्शन के लिए कहां से जाएगा? वो बीच से जाएगा या नहीं जाएगा? यस सर, सेंटर से ही जाएगा। वो सिमेट्रिक है इसलिए वो सेंटर से जाएगा, सही है। लेकिन इसका जो डायग्राम है ना वो इस तरह से बनेगा। सो ये जो है यहाँ पर मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। दिस इज योर टाउ मैक्स। लेकिन आपको टाउ बी भी फाइंड करना है और टाउ सी भी फाइंड करना है। नीचे का जो है वो तो रेप्लिकेट हो रहा है इसलिए सेम रहेगा। ये जो साइज अलग अलग होता तो कुछ चेंजेस रहेंगे, लेकिन साइज अलग अलग वाला अभी हम नहीं करते हैं। So is this clear for everyone now? What is stress? What is bending stress in beam? What is shear stress in beam? Clear? यस सर। यस सर। Okay. तो आज का जो रिविजन सेशन है वो यहाँ तक रखेंगे। आगे जो है वो हमें न्यूमेरिकल करने हैं तो हम न्यूमेरिकल करेंगे बाद में। Okay, you can give your attendance in a chat box. After that you can leave. If you have any query, then you can ask. सर हेलो सर। संतोष क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं पता चल रहा। अच्छा, ये कह रहे थे कि ये इक्वेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस जो है सर, इसको प्रूव करने में थोड़ा कंफ्यूजन है सर, किस टाइप से करेंगे। ये वो मैं बोला कि आपको न्यूमेरिकल जब शुरू होगा तब वो पता चल जाएगा। जो आपको रेक्टेंगल के लिए और सर्कुलर बीम के लिए वो आपका हो गया है, सही है। उसमें कुछ कंफ्यूजन है, लेट मी नो। उसके अंदर आपको कुछ करना ही नहीं है। आई का वैल्यू bd³/12 डालना है, y का वैल्यू d/2 डालना है, d/4 होगा इसके लिए क्योंकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा अपर सेक्शन के लिए। बस दोनों का वैल्यू ही डालना है और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। नहीं सर, ये प्रूव जैसे किए हुए थे इसको, जब दूसरा कोई सेक्शन आपको प्रूव नहीं करना है, सिर्फ यही सेक्शन को प्रूव करना है। हाँ सर, यही कंफ्यूजन था। हाँ नहीं, 2 ही सेक्शन करना है। हाँ तो क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू।